So today we are going to start group 17 elements. So fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine are the group 17 elements. And astatine is a radioactive elements. And group 17 elements are also known as halogens. Halogens means producer of salt. These are salt producing elements. So therefore these are known as halogens. Halogens. So group 17 elements are also known as halogens. So their electronic configuration for the group 17 elements like other group of element is, so फ्लोरीन के लिए स्टेबल एलिमेंट हीलियम आएगा क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो बिलो एटॉमिक नंबर 9 हीलियम इज द स्टेबल एलिमेंट, दैट मीन्स ग्रुप 18 एलिमेंट. ट्वाइस s2 2p5. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन. एंड क्लोरीन के लिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, सो बिलो 17 stable element is neon जिनका atomic number 10, 3s2 3p5. next one bromine जिनके लिए stable element हम लोग लिखना पड़ेगा argon 3d10 4s2 4p5. एंड अनदर वन आयोडीन स्टेबल एलिमेंट होगा क्रिप्टन. आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है. 4d10 4s2 4p5. एंड फॉर एस्टाटिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल एलिमेंट जेनॉन. एस्टाटिन में 4f ऑर्बिटल भी फील होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स. 5d10 6s2 and 6p5. So every element of group 17 is containing 5 electrons in the outermost p orbital, p subcell. So what is the valence shell configuration for the group 17 element? This is the valence shell configuration for the group 17 elements. So group 17 elements का valence shell configuration is ns2 np5. This is the valence shell configuration for group 17 elements. Then group 17 element का number of valence electrons is equal to how many? 7. group 17 element का number of valence electron 7. जैसे कि group 16 element में valence electron 6, group 15 में कितना है? 5. then group 15 elements का number of valence electron 7. and valence shell configuration for the group 17 element ns2 np5. then other general properties for the periodic properties for the group 17 elements for the other group similar to other groups. First one, ionization enthalpy. Ionization enthalpy. So in case of group 17 elements, group 17 elements have high ionization enthalpy. Why they have high ionization enthalpy? Because they have
they have little tendency they have little tendency to lose electrons, क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है. उन लोग 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कन्फिगरेशन मिल जाता है. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से दे अटेन electronic configuration of the group 18 elements, stable electronic configuration. So group 17 elements have little tendency to lose electrons, therefore they have high ionization enthalpy. But in every group, ionization enthalpy decreases down the group. Why ionization enthalpy decreases down the group? Because down the group atomic size of the element increases, due to which effective nuclear charge of element decreases down the group. Effective nuclear charge मतलब न्यूक्लियस का outermost इलेक्ट्रॉन का ऊपर में attraction decrease हो जाता है due to down the group, due to the increase in number of cells down the group. Then another one periodic property is electronegativity. It is one of the important property of group 17 element. So group 17 elements, they have high electronegativity, but electronegativity of the element decreases down the group. Fluorine to chlorine electronegativity decreases, chlorine to bromine electronegativity decreases, bromine to iodine electronegativity decreases. So in every group, electronegativity of the element decreases down the group, because non-metallic character decreases down the group, metallic character increases down the group. So due to the decrease in non-metallic character down the group, electronegativity of the element decreases. So in this group, fluorine is the most electronegative element. Periodic table में जितना element है, सबसे ज़्यादा electronegative element है fluorine. तो fluorine is the most electronegative element in the periodic table. So another one periodic property is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy, also called electron affinity. Electron gain enthalpy is a negative quantity. When an isolated gaseous atom gain an electron to form an anion, definite amount of energy is released, which is known as electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is a negative quantity. So electron gain enthalpy एक एलिमेंट का मोर नेगेटिव होगा जब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ electron gain enthalpy. It is not regular order. So fluorine to chlorine electron gain enthalpy increases. Electron gain enthalpy मतलब electron gain enthalpy becomes more negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंक्रीजेस डिक्रीजेस नहीं बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोला जाता है मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इंक्रीजेस. तो फ्लोरीन टू क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. दैट मीन्स क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका कमती होगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से किसका कमती होगा, आयोडीन. मतलब ये ऑर्डर को हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, क्लोरीन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन टू ब्रोमीन डिक्रीजेस, ब्रोमीन टू आयोडीन डिक्रीजेस. इस ऑर्डर को हम लोग ऐसे भी लिख सकता है. सो देन यहाँ तो एक इरेगुलरिटीज आया
क्यों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा है? वाई क्लोरीन हैज़ Cl has greater tendency to gain electron than the fluorine. So chlorine has more negative electron gain enthalpy than fluorine, then bromine, then iodine. So chlorine का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से क्यों ज़्यादा है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेना पड़ेगा. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके लिए स्टेबल एलिमेंट हीलियम आ जाता है 2s2 2p5. एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नियॉन एंड 3s2 3p5. सो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है. एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 3p में. तो अभी 2p एंड 3p ये दोनों का साइज कंपेयर करने से इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3. when principal quantum number increases, then size of the orbital increases. Then that means what? 3p is bigger in size than the 2p. Size of an orbital depends on the value of principal quantum number. तो 3p is bigger in size than the 2p, क्योंकि 3p के लिए n वैल्यू 2p से क्या है, ज़्यादा है. सो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 3p में जिसका साइज बिगर है. लेकिन जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, 2p में. मतलब ऐसा है दोनों के लिए लाइक दिस. तो इलेक्ट्रॉन कितना है दोनों में, इसका p ऑर्बिटल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5. इनका भी p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5. तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होगा. सो किसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा? क्लोरीन का. मतलब 3p में इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर हो पाएगा 2p से. क्यों 3p में इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर हो पाएगा? क्योंकि 3p का साइज बिगर है. जब साइज बिगर होता है ऑर्बिटल का, देन इलेक्ट्रॉन एंटर होने के लिए इजी होता है, क्योंकि साइज बिगर होने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कमती होगा. मतलब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लेस. और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, मोर. जब 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा. और जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा, देन क्या होगा, 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर होने का टेंडेंसी कमती होगा. मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कमती होगा. लेकिन जब 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कमती होगा एज कम्पेयर टू द 2p, क्योंकि 3p इज बिगर इन साइज देन द 2p. जब 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, देन इलेक्ट्रॉन जब रिपल्सन कमती होगा, 3p का 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा. मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा होगा. सो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, देन क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स more negative than the fluorine. So chlorine has more negative electron gain enthalpy than the fluorine. क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर होता है, दोनों ऑर्बिटल का साइज का डिफरेंस है. क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर होने से 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने से 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा.
फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने से 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, तो 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होने के लिए इजी होगा देन दैट 2p। दैट मीन्स क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव देन द फ्लोरीन। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट concept. Next, some physical properties. Some physical properties of the group 17 elements are, all the group 17 elements are found in diatomic state, जैसे कि F2Cl2 Br2 I2. All the halogens are found in the diatomic state, and fluorine and chlorine are found in gaseous state, and bromine it is found in liquid state, and iodine is found in the solid state. Fluorine and chlorine found in the gaseous state, bromine is found in the liquid state, and iodine is found in the solid state. And third one property is fluorine, chlorine, bromine, iodine. So for this element, their melting and boiling point, melting point and boiling point, melting point and boiling point increases down the group. मतलब फ्लोरीन टू आयोडीन melting and boiling point क्या होगा, increase होगा. Melting and boiling point of a substance depends on what? Magnitude of intermolecular forces of attraction between the molecules in a substance. So fluorine to iodine magnitude of intermolecular forces of attraction बढ़ेगा. क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा? क्योंकि फ्लोरीन टू आयोडीन मोलिकुलर साइज इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा. जब मॉलिकुलर साइज बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. सो फ्लोरीन टू आयोडीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. व्हाई? ड्यू टू द increase in magnitude of, due to the increase in magnitude of intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction with increase in molecular sizes. So fluorine to iodine magnitude of intermolecular forces of attraction बढ़ेगा. Intermolecular forces of attraction also called van der Waals forces of attraction. So fluorine to iodine intermolecular forces of attraction बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि to fluorine to iodine molecular size बढ़ेगा. मोलिकुलर साइज बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, देन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. देन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड. ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड. हेलोजेंस लुक कलर्ड होता है. व्हाई ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड? This is due to the absorption of visible radiation. This is due to the absorption of visible radiation for the excitation of electrons into the higher energy levels. So why halogens are colored? This may be a reasoning question. All the halogens are colored. So why all the halogens are colored?
This is due to the absorption of visible radiation for the excitation of electrons into the higher energy level. तो हेलोजन लोग इसीलिए कलर्ड होता है क्योंकि उन लोग विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जाम करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल इनटू द हायर एनर्जी लेवल. सो किसी भी सब्सटेंस कलर्ड होने के लिए सब्सटेंस विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. किसी भी सब्सटेंस कलर्ड होने के लिए दैट सब्सटेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. कौन सा रेडिएशन? विजिबल रेडिएशन. सभी को मालूम है विजिबल रेडिएशन में वेवलेंथ रेंज 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर का अंडर में होता है. सो हेलोजेंस आर कलर्ड. क्यों? क्योंकि उन लोग विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है. विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उन लोगों का इलेक्ट्रॉन जाम होता है, एक्साइटेशन होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. So another one point related to group 17 element is bond dissociation enthalpy, जिसको bond energy भी बोला जाता है. bond energy. Bond dissociation enthalpy means energy required to break 1 mole of a particular type of bond is called bond enthalpy or bond dissociation energy or bond dissociation enthalpy. So this is the order of bond dissociation enthalpy for the halogen. क्योंकि सभी हेलोजन में हेलोजेंस आर डायटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे कि F2 मॉलिक्यूल में FF बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में ClCl बॉन्ड है, ब्रोमीन में Br बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोडीन में I बॉन्ड प्रेजेंट है. एस्टाटिन का बारे में नहीं लिखना है क्योंकि एस्टाटिन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. एंड बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिस इज द ऑर्डर ऑफ बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी. मतलब क्लोरीन बोन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है देन द फ्लोरीन बोन. एंड फ्लोरीन बोन से बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका कमती होगा? ब्रोमीन बोन. ब्रोमीन बोन से बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका कमती होगा? आयोडीन बोन. तो क्लोरीन बोन का बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों फ्लोरीन बोन से ज़्यादा है? बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के लिए बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. तो क्लोरीन बोन का बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन बोन से ज़्यादा है. इसीलिए ज़्यादा है क्लोरीन बोन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द फ्लोरीन बोन. तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो अभी हम लोग ये देखना पड़ेगा. क्लोरीन एटॉम्स आर बिगर इन साइज देन द फ्लोरीन एटॉम. मतलब जब ये दोनों क्लोरीन एटॉम बोन फॉर्म करेगा, इन दोनों का बीच में क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा. और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 से ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया. तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ. एंड देन क्लोरीन का पास कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया? 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसको लोन पेयर बोला जाता है. सिमिलरली इसका पास भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयरिंग किया 1 इलेक्ट्रॉन. देन क्लोरीन का पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया? 3. सिमिलरली फ्लोरीन का पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्लोरीन. देन these are the non-bonding electrons, मतलब lone pairs on the fluorine atom. So fluorine is smaller in size than the chlorine. Then ये दोनों फ्लोरीन एटम क्या होगा? ज़्यादा सामने में होगा. और क्लोरीन का साइज बिगड़ है, इसलिए क्लोरीन एटम लोग क्या होगा? ज़्यादा डिस्टेंस में होगा. जब ये दोनों क्लोरीन जब ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, देन क्या होगा? ये लोन पेयर का बीच में रिपल्सन क्या होगा? लेस. और यहाँ क्या है? ये दोनों फ्लोरीन, ये फ्लोरीन थोड़ा सामने में है इससे. देन ये फ्लोरीन एटम का लोन पेयर, ये फ्लोरीन एटम का लोन पेयर का बीच में क्या होगा? रिपल्सन क्या होगा? मोर होगा. जब दोनों फ्लोरीन एटम का लोन पेयर का बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा.
और जब बॉन्ड वीक होगा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, कमती होगा। लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों क्लोरीन एटम ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसलिए इसका लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगा, कमती होगा, और रिपल्सन कमती होने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देन बॉन्ड स्ट्रांग होने से बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड more strong bond than the fluorine fluorine bond. So it is also a very important reasoning point related to the bond dissociation enthalpy. So क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड से ज़्यादा है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड का कमती है। ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड से आयोडीन आयोडीन बॉन्ड का कमती है। So today we stop here. In next video we will start chemical properties of group 17 elements. So thank you.